मॉर्निंग बच्चों, मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका? सानवी। आपका निहारिका। कौन से रीजन से हैं? बैंगलोर रीजन। आपका पेयर स्टेट? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अच्छा, बताइए उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड या उत्तरांचल भारत की ऊपरी दिशा पर स्थित है। इसे भारत की देवभूमि माना जाता है, अंग्रेजी में द लैंड ऑफ गॉड्स। हिमालय पर्वत श्रृंखला में टोन्स और काली के बीच के इस प्रदेश में भारत के सर्वोच्च शिखरों में से कई हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नर और नारायण दोनों रहते हैं और इधर खूबसूरत पहाड़ और वादियाँ हैं, हजारों हिमनद हैं, उनसे निकलने वाली गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं, खूबसूरत मैदान, उद्यान, यहाँ तक कि एक रेगिस्तान तक है। ये सब कुछ और बाकी बहुत कुछ ठीक मैं कहा पर। चलिए देखते हैं। चलिए। So are you ready to come with us to a trip along to Uttarakhand? Yes, of course. Thank you. तो पहले वक्त में पीछे जाते हैं और देखते हैं उत्तराखंड के इतिहास को। उत्तराखंड के इतिहास क्षेत्र के गौरवशाली अतीत को गाता है। यहाँ पर उत्तराखंड के विकास और उत्पत्ति का एक लंबा इतिहास रहा है, जो कुषाण, कुटीर, समुद्रगुप्त, पलाश, पवार, छंद जैसे महान साम्राज्यों को उजागर करता है। ऐसा भी माना जाता है कि उत्तराखंड दो खंडों में बटा था, मानसगढ़ और केदारगढ़। यहाँ पर बहुत सारे चोटियाँ हैं, बहुत सारे घाटियाँ हैं, जो स्वर्ग जैसे कि लोक आप- के रूप में माना जाता है। कुछ है आपका दिखाने के लिए ऐसा? कुछ चोटियाँ वगैरह, मतलब जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ है चार्ट पेपर में ऐसा आप लोग ने ऐसा कुछ है? उधर है ना चोटिया दिखा। ओके, अच्छा, इन वादियों की बात कर रहे हैं, इन चोटियों की बात कर रहे हैं। वाह, देखो मैं कौन हूँ, मैं तो उत्तराखंड की गुड़िया हूँ और ये है मेरी चार सहेलियाँ। These are the dolls of Uttarakhand made with paper mache and air clay, which gives a bridal look for the men and women. nice. This is Aipana, a ritualistic folk art of Uttarakhand. This is done on special occasions like wedding, festival, as well as when there is a death of a person. The red color is painted on hard surface, which is obtained by gero or the red brick soil, while the white color is obtained by rice flour, the rice flour, and there is a fact that these paintings are drawn with fingers. Here it is drawn with paint brushes, but actually it is drawn with fingers. That Aipan art is derived only the word Aipan is derived from the Sanskrit word Arpan, meaning writing on likhai. So this art was originated in the during the reign of Chand dynasty in the Almora district of Uttarakhand, and this can be done on everywhere, like on the utensils, on entrance of the houses, like on these wooden mattas and so on. These are very beautiful art forms which portray floral designs and geometrical designs. Nice. Let's explain that. ये लकिया बूट है, ये एक हिल यात्रा में पहना जाने वाला एक मुखौटा है। ये शिव जी का परम प्रेम गण वीरभद्र स्वामी है और ये भी कहा जाता है कि वीरभद्र स्वामी जब लकिया के रूप में आते हैं तो वो उग्र होकर भूत की तरह नाचते हैं और इनको संभालने के लिए दो व्यक्ति होते हैं जो इस तरह की टोपियाँ पहनते हैं और रस्सी से पकड़ के रखते हैं। बहुत बढ़िया। आइए बहुत। आइए पधारिए पधारिए हमारे मेले में, मिलिए हमारी देवी नंदा देवी और उनके बहना सुनंदा से। वाह वाह। Nanda Devi Mela is one of the major festivals of Kumaon region of Uttarakhand. This is celebrated for 5 or 7 long days where the Rath is taken all over the town.
This is celebrated since the Chand kings who ruled here. And there are two things which was named after this goddess, which was the two mountains, the Mount Nanda Devi and Mount Sunanda Devi. Mount Nanda Devi is the second highest peak in India. And then another thing is Nandashtami, a period of time in Uttarakhand's calendar in September called as the Nandashtami. And a fact is that always the mass of Nanda Devi and Sunanda Devi is done in front of mountain Nanda Devi. Okay. So nice, beta. So nicely explained. Both are explained very Coming to the clearly. dances of Uttarakhand. So we have so many famous dances. One of them is the Cholia dance. It is a sword dance in which the dancers are equipped with the swords and the shields, and they represent Kumaon warriors. So these dances are mainly done in the Rajput weddings. And there are so many dances, other dances like Chora dance, which is a springtime dance which the local people move in circles. And also there is Mukauta dance. Mukauta dance is done where participants wear traditional attire, and on that they wear traditional masks which represents gods as well as demons. And God, which one is God and which one is demon? so Can you this is explain? God, Okay, and even this is God. okay. And some of them like this, all these are demons. ये एक लोक नृत्य है जो लोक कथाएं तथा उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता है.
पहना। इसको पहना के दिखा सकते हैं। किसी ने कल्चर पे बनाया है, किसी ने क्लोथ्स पे बनाया है, किसी ने इंडस्ट्रीज, किसी ने सिर्फ स्किल्स पे डाला है। हम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे 12 प्रकार से हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, थोड़ा सा ब्रेक लूं, एक फ़ोन आ रहा है। इस चीज़ को हम गवार कहते हैं और ये हमने पूरी तरह से रीयूज रिसाइकिल करके चीज़ों को बनाया है। जैसे यहाँ पर इसको हमने डाल दिया और ये छत्तीसगढ़ का बाउंस क्राफ्ट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3.7 लाख लाखों का प्रोडक्शन होता है हर साल। तो चिड़ियों के लिए रखा जाता है छत्तीसगढ़ में। जब भी चिड़िया आती है तो उनको खाते हैं छत्तीसगढ़ को, क्योंकि धान का कटोरा कहते हैं तो इसमें मैम ये बाइसन और पैराचाइट और ये दोनों टेराकोटा वर्क है जो वहाँ पर होता है। आप अगर यहाँ पे देखिए तो ये ढोकरा आर्ट है। ढोकरा आर्ट अराउंड 2000 ईयर्स चला आ रहा है और ये पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया था। बताने का बात ये है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडिया के वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है और जो कि इंडिया के ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ढोकरा आर्ट छत्तीसगढ़ में आया और वही बात है ये कुछ बात ये सभी मैम ढोकरा आर्ट की ही एग्जाम्पल्स हैं। मैम इनको हमने पेपर से बनाया है। मैम ये तीरथगढ़ वाटरफॉल्स है। इंडिया में ऐसे काफ़ी कम वाटरफॉल्स होते हैं जिनमें स्टेप्स होते हैं और इसमें टोटल 7 स्टेप है और अब देखा जाए तो हर एक स्टेप की लंबाई जो है वो 91 मीटर्स तक है और ये कांगेर वैली नेशनल पार्क में लोकेटेड है। कुतुबसर और कैलाश केव भी वहीं पर लोकेटेड है। ये भी कुछ बैम्बू रॉक है। मैम ये हैंडलूम है जो छत्तीसगढ़ में यूज़ किया जाता है और ये कोसा सिल्क को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा स्पेशल सिल्क है और ये जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा अराउंड 80 कॉर्पोरेशन बनी है। मैम ये पिथोरा पेंटिंग है। पिथोरा पेंटिंग एक रिचुअलिस्टिक पेंटिंग होती है जिसमें पहले प्लास्टर लगाया जाता है। जो प्लास्टर लगाते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं उनको पिथोरा कहते हैं और जो इस रिचुअल को करा रहे होते हैं वो हम आर्टो कहते हैं। लीब्रा माइंस वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ओपन कास्ट कोल माइन है जो कि कोरबा में लोकेटेड है और एशिया और इंडिया की ये लार्जेस्ट कोल माइन है ओपन कास्ट है और ये कुछ क्राफ्ट वर्क है जो पाए जाते हैं और यूज़ करके पुराने गाने से अराउंड 42.13% छत्तीसगढ़ में फॉरेस्टेड एरिया है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका अराउंड 30% ऑफ द वर्क पूरा हो चुका है। राम वन मार्ग इसमें नाम रामगढ़ शिवरी नारायण जहाँ पे शबरी जी ने राम जी को अपने जूठे बेल खिलाए थे क्योंकि यहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम और ऐसा माना जाता है कि अभी जन्म
कौशल्या का मंदिर चंद्रपुर में है और ऐसा कहा जाता है कि ये राम जी का नैनीताल है। मैम यहाँ पर आगे आए तो यहाँ पर भी हमें बाबू गॉड से मिलता है। और मैम हम अगर मैप्स की तरफ जाए तो छत्तीसगढ़ में अराउंड 5 डिविजन्स हैं और 35 KVs हैं छत्तीसगढ़ में। जब धान का कटोरा, तो जब धान को निकालने के बाद उसके कुछ भूसा जिसे कहते हैं, कुछ टुकड़े बच जाते हैं, तो उसको लपेट के उसके आसपास थ्रेड लपेट के कुछ क्राफ्ट बॉक्स वहाँ पर बनाए जाते हैं। ये छोटा आपको एग्जाम्पल। और मैम ये वहाँ का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दिखाने के लिए हमने एक पेंटिंग बनाई है। जैसे वहाँ पर पैडी, मेज, मिलेट, सीरियल्स, अश्वगंधा, सीतागंधा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। मैम ये मारिया मेंडिस है और उस मारिया ट्राइब जब शोषण होने लगे थे, जब वहाँ के लोग रहते थे, तो उनकी यादों में ये मारिया मेंडिस बनाया जाता था। मैम ये हमने वॉल हैंगिंग बनाई है एक बुलेट सीन दिखाने के लिए छत्तीसगढ़। ये यहाँ का मेटल है। ब्लॉक आयरन मेटल आर्ट कहते हैं और इसकी खासियत होती है कि इसमें आप जॉइंट सीन देख सकते हैं। ये माता दंतेश्वरी का टेम्पल है। माता दंतेश्वरी के टेम्पल की मिथ है, राजा अन्नम देव वारंगल से छत्तीसगढ़ आए थे तो माता दंतेश्वरी ने उनको एक वरदान दिया था कि वो जहाँ तक भी जाएंगे वहाँ तक की ज़मीन उनकी हो जाएगी। जब अन्नम देव शंकनी और डंकिनी रिवर के तट पर आए तो माता दंतेश्वरी के पैर गुनगुन चुके तो पानी में होने के कारण उनको आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो वहीं रुके और पीछे मुड़कर उन्होंने देखा। भगवान के अनुसार माता दंतेश्वरी का टेम्पल वहीं पर बनाया गया और ऐसा मान्यता भी है कि माता दंतेश्वरी के पैरों के चिन्ह भी वहीं पर पाए गए। अगर आप इन पेंटिंग्स की तरफ देखें तो ये कुछ हमने प्रोमिनेंट पेंटिंग्स बनाई है जो कि छत्तीसगढ़ में फेमस है। ये वहाँ की टीचन बाई है जो कि पंडवानी डांस करती है। छत्तीसगढ़ की शान है, हम सबकी पहचान है, जिसके सर में लोग पूछता ऐसा गौरववान है। तो मैम उनका जन्म 8 अगस्त 1956 को हुआ था और ये अभी भी जीवित है। अराउंड 67 ईयर्स की हो चुकी है, बस थोड़ी बीमार है। ऐसा माना जाता है कि माता छत्र खाती है, तो आप कोई भी मनोकामना माता से पूछिए तो वो आपको माता के मंदिर के आगे गौतमगढ़ की स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ को अगर आप पीछे से पकड़ते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैम ये छत्तीसगढ़ी गमछा है तो वहाँ पे काफ़ी फेमस है और ये ब्लॉक प्रिंटिंग है जो कि छत्तीसगढ़ में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम फैक्ट्री वर्क होता है तो वहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड को यूज़ करा जाता है। मैम आप आगे चलकर ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड का आप हमारे स्टॉल पर देखिए। बेटा अभी डिस्क्रिप्शन कम करके क्लोज करेंगे, आप थोड़ा पेंटिंग दिखाइए।